Hi guys, this is another class from the topic of inflation. We're already done with one class जिसमें हमने 5 questions के through 5 topics cover करी. Now every class that I'm covering right now from prelims perspective, इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस कराना नहीं है खाली. इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव आपको मल्टीपल टॉपिक्स भी रिवाइज कराना है. So do not look at one question as one question. Look at every question as a separate, as a new topic that you are covering or you are revising. तो आज हम लोग 5 से 10 questions पिकअप करेंगे. But because I will be explaining every topic in detail through those questions, तो actually हम लोग 5 से 10 topics कवर करेंगे. तो अब मुझे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 खोला है, विच इज ऑन स्टैगफ्लेशन. इस तरह से मैं 5 या 10 क्वेश्चंस के थ्रू 5 से 10 टॉपिक अलग अलग कवर करूंगा, विच आर डायरेक्टली गोइंग टू बी रेलेवेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन? Stagflation is when inflation and deflation occur simultaneously, resulting in stable prices overall. Stagflation is a term used to describe a situation where there is high economic growth coupled with low inflation. अब हमें शायद स्टैगफ्लेशन का आंसर पता हो, बट क्या हमें पूरा थ्योरी या फिर पूरा कॉन्सेप्ट स्टैगफ्लेशन का क्लियर है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. Stagflation refers to an economic condition characterized by stagnant economic growth and decreasing unemployment. And last is stagflation is when inflation rates are high, number one, coupled with high unemployment and stagnant economic growth. तो हमें पता है आंसर यार डी ही होने वाला है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं एक बार. स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में होता क्या है? स्टैग्नेशन होता है, विच मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग डाउन. साथ में इन्फ्लेशन होता है, विच मीन्स इन्फ्लेशन इज गोइंग अप. एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गोइंग अप. ये नॉर्मली आप लोग स्किप कर जाते हैं, सब कुछ हर कोई नहीं बताता है. अब इसके पीछे के लॉजिक के ऊपर आते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्टैगफ्लेशन इतना ट्रिकी क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर स्टैगफ्लेशन में कोई कंट्री फंस जाती है तो वहां से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? नंबर वन, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब इफ यू ट्राई टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, and employment can increase or unemployment can go down only when growth goes up. क्योंकि growth होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा लोगों को you have to employ more people. So if you want to employ more people, you have to try and increase growth in the economy. But if you do both of these, automatically inflation starts going up also. Why? More production, automatically less unemployment, more employment. These people are going to demand different goods and services because इनकी इनकम हो रही है, प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, ग्रोथ ऊपर जा रहा है. lot of people in the economy start getting employment in such a way, they start demanding goods, inflation ऊपर जाने लगेगा because now the demand for goods is also going up, so inflation also starts going up. और inflation already बढ़ा हुआ था, so you might end up in a situation of hyperinflation or too aggressive an inflation to be able to control. इसीलिए ये ट्रिकी सिचुएशन है. तो आप ग्रोथ बढ़ाने की तरफ नहीं जा पाते. The economy is not able to do that because as soon as inflation starts going above its comfort zone, the economy has to do something in order to reduce growth and thus reduce inflation. तो वापस stagflation की सिचुएशन में फंस जाते हैं. The second is, if you try to reduce inflation, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की तरह के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, इफ यू ट्राई एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली unemployment starts going up again even more and economic growth starts going down. How do you reduce inflation? You, let's say, try to target inflation by reducing money supply in the economy. Less money in the hands of people, they will demand less, automatically inflation will go down. But if you have less money supply in the economy, less number of people have money in their hands, automatically production and growth will go down because demand ही नहीं हो रही तो supply करके क्या करोगे? When growth starts going down, unemployment starts increasing because let's say I'm producing something, I'm producing shoes, and tomorrow instead of 1 lakh people, 90,000 people start demanding shoes. 10,000 people are not demanding shoes anymore. Now I'll start producing less because मैं inventory रख के क्या करूँगा? If I produce 90,000 instead of 1 lakh shoes, automatically I'll start firing some people. So unemployment starts going up. So that is why this is a tricky situation. Whatever you do, you end up getting back to that vicious cycle of high inflation, high unemployment, low economic growth.
इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इकोनॉमी जो है वो किस वजह से, व्हाट आर द मेजर कॉजेज behind an economy getting stuck in inflation, stagflation? No economy has one perfect solution of coming out of stagflation. That is why I'm not going to discuss the solutions to stagflation. Every economy, every situation demands something different. But there are certain predefined causes behind stagflation. Why does an economy get stuck in stagflation? There are two such philosophies or policies which I'm going to discuss here. Number one, supply shock theory. Supply shock theory बोलती है, if there is a sudden disruption in supply of essential commodities like oil, कोई ऐसी commodity जिसके बेसिस पे पूरी इकोनॉमी चलती है, essential commodity है, उसमें sudden supply shock हुआ, मतलब उसमें उसकी availability एकदम कम हो गई. Let's say people eat gold, for example. Let's assume people eat gold and tomorrow there is a sudden fall in supply of gold. What will happen? जो भी गोल्ड बचा होगा उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, because people need to eat it to be able to survive. So everybody will start demanding, everybody will try and hoard it. कि यार जितना रख सकते हो रख लो, सप्लाई पीछे से नहीं आ रही है. What will happen? The price will immediately go up. जो पहले 100 रुपए का मिलता था अभी वो 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का मिलने लगेगा. Why? Because supply is limited and people know that tomorrow there might not be enough for us to eat also. So let's try and hoard as much as possible. Something similar happens in a supply shock, under supply shock theory. A sudden rise in prices and fall in economic growth due to volatility, expensive production, less profits, less sales. This also happens in the case of commodities which are the base for everything else that happens in the economy. For example, oil. If there is a sudden supply shock in oil, everything becomes expensive because oil is used in literally everything that we consume and produce nowadays. अब कुछ भी उठा लो, हर चीज में ऑयल एनर्जी यूज हो रहा है, या तो डायरेक्टली ऑयल यूज हो रहा है या इनडायरेक्टली यूज हो रहा है. बिकॉज दैट इज द केस, इफ देयर इज अ सडन राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑयल, देयर इज अ सडन राइज इन प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग. तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा स्पाइक करेगा तो क्या होगा? इकोनॉमी विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, बिकॉज जैसे इंडिया में अभी हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ऑल्दो इट इज नॉट स्टैगफ्लेशन, इट माइट टर्न इनटू स्टैगफ्लेशन इन द फ्यूचर इफ वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो राइट नाउ इन्फ्लेशन इज हाई, इन्फ्लेशन ज्यादा है, धीरे धीरे लोगों को फील होने लगा है कि यार वी आर अर्निंग अ लॉट बट नाउ वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट मनी एनी मोर बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ लॉट. तो जो सामान हम कल 10,000 में खरीद लेते थे पूरे महीने का, आज हमको 20 देना पड़ रहा है. सो ऑल्दो माई इनकम हैज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 55,000, आई थॉट 10% स्पाइक good enough, 10% increment मिल गया, but inflation is eating away all of that. So even though my income has increased because of higher production, my real income has not increased. My nominal income has increased. So what will I do? I will start consuming less. अब ऐसे पूरी इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे, what will happen? Economic growth will start going down. Economic growth नीचे जाएगा, कंपनीज प्रोड्यूस कम करना शुरू कर देंगी, what will happen? Unemployment will start going up. So that is the cycle that you can get stuck in if you don't resolve it when you are getting into it. So supply shock theory is one such theory कि ऐसा एक शॉक लगा इकोनॉमी को जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी हिल गई, इमीडिएटली इन्फ्लेशन ऊपर गया, इमीडिएटली इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गया, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने लगा. दैट इज वन थ्योरी. द सेकेंड थ्योरी इज पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज. मतलब आपकी गलती की वजह से हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल सप्लाई शॉक. वन सच एग्जाम्पल इज पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एग्जाम्पल, रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई. आपने इमीडिएटली मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में बहुत बढ़ा दी. व्हेन लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर हैंड्स, व्हाट विल दे डू? कल आपके पास 100 रुपए थे, आप मार्केट में गए, आपने 100 रुपए खर्च करे. टुडे यू गेट अप एंड यू रियलाइज यू हैव 1000 bucks इन योर पॉकेट. व्हाट विल यू डू? यू विल फील लाइक अ किंग. आप जाओगे मार्केट में, जो मन करेगा वो खाना शुरू कर दोगे, चिल करोगे, जो मन करेगा वो खरीदना शुरू कर दोगे. यू विल फील रिच. But now, after few days, you realize everyone has 1000 bucks in your neighborhood. So everyone is feeling like a king. तो अभी आपको छोले भटूरे खाने थे, कल आपने 50 रुपए दिए थे, 2 दिन पहले आपने 30 रुपए दिए थे, आज जाओगे तो बोलेगा 200 रुपए का अब एक प्लेट है, अब 50 का नहीं है. Why? Because everybody has a lot of money and they are all standing in the line and saying हमको पहले चाहिए, हम बहुत पैसे वाले हैं, हमको ये सामान पहले चाहिए. तुम 50 की जगह 100 ले लो, 150 ले लो, मुझे तो यही खाना है और अभी खाना है.
because there is an immediate increase in demand, because a lot of people have a lot of money in their hands because of rise in money supply. Now everything starts becoming expensive. तो फिर से हम इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होगा. So there is too much nominal growth. Everybody feels rich, but actually everybody is not getting rich because real growth is not happening in the economy. High inflation, sudden fall in purchasing power. जो मैंने बोला 50 रुपए का मिलता था, now you are getting the same thing for $200. So there is a fall in your purchasing power. Ultimately आप क्या करोगे? Consumption धीरे धीरे कम करना शुरू कर दोगे, because you will realize after a while that you're earning a lot, you have a lot of money, but that money is not valuable enough. उसकी वैल्यू उतनी है नहीं जितनी मुझे लगती थी. प्रोडक्शन और सेल्स कम होगी अल्टीमेटली, बिकॉज इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग अ लॉट. अगर आप एसेंशियल्स पे आ गए तो कंपनीज बेच नहीं पाएंगी. इफ दे नॉट एबल टू सेल, ऑटोमेटिकली दे विल रिड्यूस देयर प्रोडक्शन एंड रियल इकोनॉमिक ग्रोथ गोज डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स गोइंग अप. So based upon these two understandings, now we can come to the conclusion that option number D is our correct answer for question number 6. stagflation का मतलब क्या होता है? I hope this topic is clear now. जैसा मैंने आपको बोला था, एक question is equal to one separate topic. So do not look at a question as a question. Look at every question as a topic. If you really want to learn something new, or if you've already learned it, if you want to revise it. अगर क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखोगे, then these classes are not for you. They're not going to help you much. Okay. Second question पे आते हैं. Question number 7. In an economy, this theory studies the unexpected events that cause a sudden change in supply of a product or service. This change can be positive or negative, and it can affect the equilibrium price of the product or service. This can prove to be one of the potential causes of stagflation. ये पिछले क्वेश्चन से derived है. इसका आंसर है सप्लाई शॉक थ्योरी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी. इट कैन बोथ बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. बट द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि ये सारी थ्योरीज क्या हैं. इनको ब्रीफली समझ लेते हैं. Keynesian theory. Now this is something which emerged out of the Great Depression of 1929. और Keynesian theory बड़ी सिंपल थी. It used to say whenever an economy is in a depressionary scenario, then it cannot correct by itself. हमें ऐसा लगता था, उस टाइम की क्लासिकल थ्योरीज बोलती थी that every economy comes back to its corrective position on its own. कीन्स ने बोला नहीं, हो सकता है कि ऐसा ना हो. If an economy is too deep into depression, then it might not be able to come back to its original natural state of employment, growth and inflation. वो उसमें और नीचे जाती चली जाएगी. Therefore, it becomes the responsibility of the government now to make sure that the economy comes back to its natural normal state. And how does the government intervene in this? The government comes into play by spending money. जब सरकार पैसा खर्च करना शुरू करेगी तो डिमांड क्रिएट होनी शुरू होगी. डिमांड क्रिएट होनी शुरू होगी तो ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी. People will start producing in order to cater to that demand. Companies will start producing. People are consuming because the government has induced some demand. Unemployment नीचे जाएगा because प्रोड्यूस करने के लिए उसको लोग चाहिए. So it will start hiring people. Unemployment नीचे जाने लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर जाने लगेगी. Inflation is already very down because nobody is consuming, nobody is producing anything. तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी एक नेचुरल स्टेट पे आना शुरू होगा, डिमांड बढ़नी शुरू होगी. इन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन इज डिमांड ओनली. डिमांड इज मोर देन सप्लाई. इन्फ्लेशन है ना. सो Keynesian theory says increase government expenditure to create demand in the economy when the economy is stuck in a depressionary scenario for too long. This is what Keynes said. इसलिए हम इसको Keynesian theory बोलते हैं. Very simple to understand. This is what brought us out of the Great Depression of 1929. Second is monetarism. Monetarism was given by two people, Milton Friedman and Anna Schwartz, 1970s के आसपास. इन्होंने बोला था कि मनी सप्लाई plays a major role in maintaining economic growth in an economy. Monetarism बोलता था कि अगर आपको एक इकोनॉमी में ग्रोथ मेंटेन करनी है तो मनी सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है. And monetarism claimed that the Great Depression that we faced in 1929 was because money supply was not able to cope up with the increase in population growth. Listen to me carefully. Monetarism theory claimed that we got stuck in 1929 depression not because of other reasons but because money supply could not increase to a proportion equal to an increase in population growth.
जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, हर किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए उतना, तो मनी सप्लाई भी बढ़नी जरूरी है. बट इफ मनी सप्लाई डज नॉट इंक्रीज, पीपल हैव टू लिटिल मनी इन देयर हैंड्स, सो दे स्टॉप डिमांडिंग. व्हेन दे स्टॉप डिमांडिंग और दे डिमांड टू लेस, द प्रोड्यूसर स्टॉप प्रोड्यूसिंग. वो अपनी फैक्ट्रीज बंद करके चले जाते हैं, उनको लगता है यार कोई खरीद तो रहा नहीं है. व्हेन दैट हैपेंस, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स गोइंग अप. यहाँ पे दो चीज हुई, इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, क्योंकि बहुत कम डिमांड है, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर है. तो ये स्टैगफ्लेशन जैसा ही सिनेरियो है, बट इसमें स्टैग्नेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन नहीं है, स्टैग्नेशन के साथ साथ डिफ्लेशन है. सो मॉनेटरिज्म थ्योरी सेड that if you want to maintain economic growth in an economy, it's very important that you are at the optimum point of money supply. And this is where the importance of RBI comes in. RBI की इंपॉर्टेंस यहां पर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई वही डिटरमाइन करता है. इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी विच डिटरमाइंस कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए. दिस वाज द सेकंड थ्योरी. थर्ड इज इकोनॉमिक शॉक थ्योरी. Giving sudden shocks to an economy towards liberalization is economic shock. This is not supply shock, it is economic shock. जैसे हमने LPG reforms किए थे, that was a sudden shock to the economy, which was meant to kickstart the economy once again. तो हमने पॉलिसी चेंजेस करे, लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज कर दिया, गवर्नमेंट को बोला आप पीछे आ जाओ, ग्लोबलाइज कर दिया. वी कनेक्टेड इंडिया विद द एंटायर वर्ल्ड, सेइंग दैट ऑल दीज बैरियर्स दैट वी हैड क्रिएटेड, जो भी हमने बैरियर्स क्रिएट किए थे, टैरिफ, नॉन टैरिफ, एटसेट्रा, सब हटा रहे हैं. सो वी गेव अ गुड इनफ शॉक टू द इकोनॉमी सो दैट द इकोनॉमी कुड किक स्टार्ट अगेन. इट्स लाइक किसी इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको शॉक देके आप उसका हार्ट फिर से चलाने की कोशिश कर दो. द सेम हैपेंड हियर. दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक शॉक थ्योरी और इकोनॉमिक शॉक दैट वी गेव टू इंडिया स्पेसिफिकली 1991. ओके, तो ये सप्लाई डिसरप्शन थ्योरी इज नो सच थ्योरी इन इकोनॉमिक्स. तो हमने क्वेश्चन 7 के थ्रू ये समझ लिया कि सप्लाई शॉक थ्योरी के साथ साथ व्हाट इज कीनीशियन थ्योरी, व्हाट इज मॉनेटरिज्म एंड वन इज व्हाट इज इकोनॉमिक शॉक थ्योरी. आई होप दिस इज क्लियर. आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए था. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर डिस्कशन टुडे बिकॉज इट्स अबाउट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है और हमेशा स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. The Consumer Price Index (CPI) is crucial for policymakers and economists as it provides a comprehensive measure of inflation. CPI की कुछ importance बताई हुई है. It comprises of various components mentioned below except for one. Identify the anomalous one. तो इसमें हमसे सिंपली पूछा है कि CPI के जो भी components हैं पहले आपको पता होने चाहिए और उसमें से कौन सा नहीं है वो बता दीजिए मुझे. Although the options are simple, but my objective is to teach you what is CPI, what is WPI, what is PPI, and everything that you need to know about CPI and WPI. Food and beverages, tobacco, clothing, stock prices. Stock prices we all know are not a part of CPI or WPI. नहीं हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है. बट क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये होते क्या हैं और इनके बारे में मुझे व्हाट ऑल शुड आई बी अवेयर अबाउट. Producer price index, the first one and the smallest one. Change in price levels leaving production place. Let's say you have a factory which is producing LED lights. LED light A, for example, was available for 100 rupees yesterday. Today it is, and yesterday was the base year. And today the same LED light you are selling from the factory, you are selling it to a distributor for, let's say, 110 rupees. Then producer price index becomes 10%. मतलब 10% इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन जो है वो 10% हो गया एट द प्रोड्यूसर लेवल. प्रोड्यूसर के लेवल पे व्हेन अ गुड और अ सर्विस इज लीविंग द फैक्ट्री, प्राइमरीली गुड्स, व्हेन दे आर लीविंग द फैक्ट्री, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. उसके बाद आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब क्या होता है, जब भी एक इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो वो D2C जरूरी नहीं है हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जरूरी नहीं है हो. यहां पे हमने एक फैक्ट्री लगाई है, लेट्स से फैक्ट्री है, ठीक है ना. इस फैक्ट्री में LED लाइट्स बन रही हैं एंड LED लाइट इज सेलिंग फॉर 100 रुपीज. दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर 1 और होलसेलर 1. होलसेलर 1 और डिस्ट्रीब्यूटर 1. होलसेलर यहां पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बाद में आएगा, ठीक है. इसको
₹100 की मिली, इसने 20% अपना मार्जिन लेके आगे होलसेलर 2 को बेच दी, लेट्स से फॉर 120 रुपीज। तो 120 रुपीज की होलसेलर 2 के पास गई। होलसेलर 2 ने डिस्ट्रीब्यूटर 1 को बेची, फॉर एग्जाम्पल फॉर 140 रुपीज, इसने भी 20 रुपए मार्जिन रखा। डिस्ट्रीब्यूटर 1 ने रिटेलर 1 को बेची, लेट्स से फॉर 150 रुपीज, इसका मार्जिन कम था। एंड रिटेलर 1 ने कंज्यूमर को बेची एट द मार्केट प्राइस विच इज लेट्स से 200 रुपीज, तो इसका मार्केट प्राइस 200 रुपए था। अब आप बोलोगे रिटेलर का सबसे ज्यादा मार्जिन है, भाई वो बेच भी तो कम रहा है ना, देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स, देर आर ओनली लेट्स से 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स, देर आर ओनली 5 होलसेलर्स, इसीलिए मार्जिन वहां पे वेरी कर रहा है। तो रिटेलर 1 ने 200 रुपए की कंज्यूमर को बेची। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन होलसेलर टू अनदर। तो यहां पे जो वो मूव कर रहा है, द डिफरेंस इन द प्राइस, या फिर यहां से यहां पे जो मूव कर रहा है, द डिफरेंस इन प्राइस इज एट द होलसेल लेवल। दे कैन बी हंड्रेड्स ऑफ होलसेलर इन द चेन, कोई लिमिट नहीं है। एट द होलसेल लेवल व्हाट इज द चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। मतलब होलसेल लेवल पे कितना वैल्यू, कितना चेंज हो रहा है प्राइस, कितना इन्फ्लेट हो रहा है प्राइसेस। आज ये 120 140 का है, 100 रुपए में इसने यहां बेची थी होलसेलर 1 को, तो इसके लिए 100 रुपए कॉस्ट हो गई। 100 से 120, 120 से 140, मतलब टोटल 100 से 140 तक इंक्रीज हुआ व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम होलसेलर 1 टू डिस्ट्रीब्यूटर 1। लेट्स से आफ्टर 1 ईयर यहां पे होलसेलर 1 को 110 का मिल रहा है और ये 160 का बेच रहा है, तो यहां पे मार्जिन कितना हो गया 50 रुपीज, यहां पे मार्जिन कितना था 40 रुपीज। सो द चेंज इन प्राइस which is taking place over a period of time gives us inflation. समझ में आ रहा है? So this is wholesale price index. Consumer price index is the change in price at this level when the good is being sold from the retailer to the consumer. अभी 200 का है, हो सकता है आगे जाके 1 साल बाद वो सेम चीज 300 की मिल रही हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, नॉर्मल सी बात है, हम देख रहे हैं कि 200 से 300 की हो गई। द सेम एट होलसेल लेवल इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स, द सेम थिंग एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। RBI used to follow wholesale price index for, some years back, till some years back. Now it figures out inflation based upon consumer price index. अब वो CPI के बेसिस पे बताता है कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, बिकॉज नाउ इट इज रियलाइज्ड कि जो एक्चुअल में कंज्यूमर पे कर रहा है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। सो व्हाई कैलकुलेट इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल व्हेन एक्चुअली द कंज्यूमर हैज टू पे अ लॉट मोर देन व्हाट वी थिंक ही हैज टू पे, राइट? एक्चुअल में वो ज्यादा पे कर रहा है, तो इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए CPI पे हम आ गए। अब समझ लेते हैं, अब हमें मीनिंग समझ लिया, बट मीनिंग के बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं WPI और CPI में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मीनिंग हमने समझ लिया, हु कैलकुलेट्स होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड हु कैलकुलेट्स CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मेजर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट में और फिर से भी आ सकते हैं। बेस ईयर 2011-12, इसको हम 100 मानते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसमें 3 टाइप के गुड्स आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स और मिनरल्स। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में फैक्ट्री प्राइस चेंज को हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में फैक्ट्री प्राइस चेंज देखते हैं कि फैक्ट्री लेवल पे कितना प्राइस चेंज हुआ है। एग्रीकल्चर गुड्स पे मंडी लेवल पे कितना प्राइस चेंज हुआ है उसको देखा जाता है। एंड मिनरल्स में माइंस में कितना प्राइस चेंज हुआ है उसको हम देखते हैं। वेट जो है वो एलोकेशन कैसे होता है। अब वेट्स एलोकेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी गुड्स को, प्राइमरी आर्टिकल्स को 23% वेट दिया, अभी 23% आया कैसे। द टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, और उस प्रोडक्शन में जितना भी वेटेज प्राइमरी आर्टिकल्स का है उसके बेसिस पे आया, जो कि यहाँ पे लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी माइनस नेट इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो जो भी हमने एक्सपोर्ट किया वो ऐड हो जाता है, जो भी हमने इंपोर्ट किया वो माइनस हो जाता है। So total value of output in the economy, मतलब total production in the economy plus whatever we have exported minus whatever we have imported, ये हमें दे देता है total production in the economy, actual में total production in the economy। और उसमें जो भी वेटेज प्राइमरी आर्टिकल्स का है उसको हमने उतना वेटेज दे दिया, जो भी मैन्युफैक्चर्ड का है, जो भी मिनरल्स का है उतना वेटेज हमने दे दिया। वेटेज इंपॉर्टेंट है एंड दिस डजंट चेंज बिकॉज ये वेटेज हम लेते हैं 2011-12 का, 2011-12 जो बेस ईयर है उसका वेटेज हम कैलकुलेट करते हैं, बार बार चेंज नहीं करते हैं। WPI में सर्विसेज नहीं आते, ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड। एंड WPI कैलकुलेशन एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पे होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड हेयर एट द कंज्यूमर लेवल। यहाँ कंज्यूमर ही तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है ना, और सबको तो इनडायरेक्ट टैक्स वट एवर दे आर पेइंग दे आर गेटिंग इट बैक इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के अंदर पढ़ते हैं आप लोग, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि इन सबको तो वापस मिल जाता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स, बट द कंज्यूमर एक्चुअली बेयर्स द बर्डन ऑफ द एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग दिस, वी आर सीइंग द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज हाउ द प्राइस इज चेंजिंग एट द होलसेल लेवल, नॉट एट द कंज्यूमर लेवल। कंपोनेंट्स क्या है? प्राइमरी आर्टिकल्स 23% वेट, फ्यूल एंड पावर 13%, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा 64%। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आ सकता है कि प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आता है। whatever is being produced from the ground वो हमारा प्राइमरी आर्टिकल बन गया, जैसे कि क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो भी ग्राउंड से निकल के आ रहा है वो सब प्राइमरी आर्टिकल है। नॉन फूड में इंडस्ट्रियल वुड, वो भी तो जमीन से निकल के आ रहा है, तो वो है तो नॉन फूड, खाते नहीं है उसको हम, बट है वो जमीन से निकला हुआ, तो उसको प्राइमरी आर्टिकल्स में हम डालेंगे। फ्यूल एंड पावर में कोल, पेट्रोलियम कोक, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी यूज होता है फ्यूल बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जब मिनरल्स ग्राउंड से निकल रहे हैं उसमें जो भी प्राइस चेंज है, उसमें जो भी इन्फ्लेशन है, उसको हम प्राइमरी आर्टिकल्स में डालते हैं। तो उनकी माइनिंग को हम प्राइमरी आर्टिकल्स में डालेंगे, बट माइनिंग के बाद उसका रिफाइनिंग, उसकी सेल्स, वो सब हम फ्यूल एंड पावर में डालेंगे। मैन्युफैक्चर्ड में जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज में, वो सब मैन्युफैक्चर्ड में आ गया। तो फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। टोबैको, बेवरेजेस, टेक्सटाइल, लेदर, वुड, पेपर, केमिकल, रबर, एलॉयज, मशीनरी, मेटल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जो भी सामान एक्चुअली इकोनॉमी में मैन्युफैक्चर होता है वो सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आ जाता है। उसका वेटेज सबसे ज्यादा है WPI में 64%। अब आ जाते हैं CPI पे। CPI इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। कंज्यूमर लेवल पे हमने बोला था, कंज्यूमर लेवल पे CPI देखते हैं। CPI का बेस ईयर इज 2012 एंड बेस ईयर ऑफ WPI वाज 11-12। ये NSO देता है। WPI वाज गिवन बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इट यूजेस लैस्पेरिस इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस लैस्पेरिस इंडेक्स? करंट ईयर में जो भी हमने बास्केट चूज किया इन्फ्लेशन चेक करने के लिए, उस बास्केट की टोटल कॉस्ट क्या थी, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द सेम बास्केट इन द बेस ईयर। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? क्वांटिटी 1 इंटू प्राइस 1। यहां पे प्राइस 1 ही लेंगे और यहां पे क्वांटिटी 2 लेंगे। करंट ईयर में टोटल कॉस्ट हमारी क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस हमारा सेम है, बेस ईयर वाला है। जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमें लैस्पेरिस इंडेक्स इसको बोलते हैं, क्योंकि लैस्पेरिस ने दिया था इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए CPI वाला, और इससे हमारा कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ WPI, वेट्स क्या क्या है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मेजरिंग द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, तो हम एक्चुअल में जब ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो ये करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग उल्टा भी करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो हम क्वांटिटी सेम रखेंगे, प्राइस को चेंज कर देंगे। बास्केट आइटम्स की टोटल कॉस्ट आज कितनी है करंट ईयर में, सेम जैसे ये एक आर्टिकल हो गया 2010-11 में इसकी कॉस्ट कितनी थी, लेट्स से 500 रुपए, ठीक है ना, एक की। तो इस साल भी हम लोग एक ही लेंगे, बट अब देखेंगे आज इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 ऑफ दिस प्रोडक्ट इनटू द प्राइस टुडे। आज कितना प्राइस है, लेट्स से 800 रुपए, तो 500 रुपए से इंक्रीज होके 800 रुपए का हो गया। टोटल हमने एक का मेजर किया। ऐसे हम एक की जगह 1000 भी ले सकते थे, 10,000 भी ले सकते थे, मल्टीपल चीजें भी ले सकते थे। एक ये लिया, एक आईपैड लिया, एक पेंसिल ली, एक टी-शर्ट ली, वी कैन टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो इसलिए हम क्वांटिटी सेम रखेंगे, प्राइस चेंज कर देंगे, जिसके बेसिस में हमें इन्फ्लेशन मिल जाए। आई होप दैट इज क्लियर। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CPI एंड देयर वेट्स। ये याद रखने जरूरी है, बिकॉज यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जा सकता है। फूड एंड बेवरेज का वेट 1 है, का वेट 45% है, मतलब वो सबसे ज्यादा वेट का है। उसके बाद मिसलेनियस 28% सेकेंड नंबर पर है। थर्ड पे हाउसिंग 10% वेटेज। फोर्थ पे फ्यूल एंड क्लोथ्स दोनों का 6% वेट,
और लास्ट है हमारा पान टोबैको मतलब सिन गुड्स, उनका 2% वेट है। तो ये सब सीपीआई के वेट्स हैं, इनके हिसाब से हम मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए इफ फूड एंड बेवरेज इज इन्फ्लेटिंग अ लॉट बट दीज आर नॉट इन्फ्लेटिंग, इसमें ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, तो भी व्हाट विल वी सी, वी विल सी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी गोइंग अप वेरी फास्ट। व्हाई? बिकॉज फूड एंड बेवरेज का वेटेज बहुत ज्यादा है। फूड एंड बेवरेज का वेटेज ज्यादा क्यों है? बिकॉज a lot of people are dependent only on food and beverage. उनका पूरे महीने का जो भी खर्चा है उसमें से मैक्सिमम खर्चा फूड एंड बेवरेज का है। दैट इज वाई द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेज इज वेरी हाई इन इंडिया। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे इसका वेटेज कम होने लगता है। ओके, सो द बास्केट इज determined based upon what are people consuming the most, what are people dependent on the most, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम एक्चुअल एक्यूरेट इन्फ्लेशन मेजर कर पाएंगे। अब सीपीआई कैन बी ऑफ 3-4 डिफरेंट काइंड्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स एंड कंबाइंड। 4 अलग अलग टाइप का हो सकता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका हम एक बास्केट बनाते हैं, उसके बेसिस में हम उसका इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेस ईयर इनके याद रखना सबके अलग अलग हैं, इसका 2016 है। और हम ये क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट वेज इंडेक्सेशन एंड डीएनएस अलाउंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। डीएनएस अलाउंस बेसिकली ऐसा अलाउंस है जो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के दिया जाता है। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई इन द इकोनॉमी, डीएनएस अलाउंस विल बी टू हाई इन द इकोनॉमी। इफ इन्फ्लेशन इज टू लो, डीए विल बी टू लो इन द इकोनॉमी, है ना? तो इसके लिए ही हम वेज इंडेक्सेशन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चरल लेबरर्स सीपीआई, टू हेल्प इन सेटिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स। हम क्योंकि इसके थ्रू मेजर करते हैं व्हाट इज द इन्फ्लेशन लेवल फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, व्हाट आर एग्रीकल्चरल लेबर्स कंज्यूम। सॉरी, इसका बेस ईयर 1986-87 है विच इज टू ओल्ड, तो बहुत ज्यादा यूज ये होता नहीं है। रूरल लेबरर्स का भी द बेस ईयर इज 1986-87। व्हाई? टू हेल्प इन सेटिंग मिनिमम वेजेस फॉर रूरल एंड अनस्किल्ड लेबर। एंड द लास्ट इज सीपीआई कंबाइंड, 2012 इसका बेस ईयर है, टू मेजर ऑल इंडिया इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल। तो दिस इज द मोस्ट यूज्ड, और सारे इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन आपको बेस ईयर और बेसिक पर्पस पता होना चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The misery index, also known as economic discomfort index, is an economic indicator created by who? अब इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मिजरी इंडेक्स किसने बनाया और मिजरी इंडेक्स है क्या? The answer is Arthur Okun. He was the one who came out with misery index. He said, let's try and figure out what is the level of misery in the economy. अब मिजरी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? According to him, there are 2 basic parameters which can be used to measure level of misery in the economy: unemployment and inflation. If unemployment is too high in the economy, there's a lot of misery. Inflation is too high in the economy, there's a lot of misery, according to him. तो उन्होंने बहुत सिंपल सा एक मिजरी इंडेक्स दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू मिजरी। बट देयर वर प्रॉब्लम्स इन दिस इंडेक्स। प्रॉब्लम ये थी कि it automatically means that low inflation is equal to low misery, but that is not always the case. If inflation is too low in the economy, that also can mean stagnation in the economy, कि इकोनॉमी में स्टैग्नेट हो गई है, अब ग्रो बिल्कुल नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। तो लो इन्फ्लेशन मे मीन स्टैग्नेंसी, बट इट विल गिव गुड वैल्यू इन द मिजरी इंडेक्स। सिमिलरली ये एक और चीज करता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को बराबर मानता है। वेटेज देखो बराबर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू मिजरी। तो अगर 1% चेंज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में, 0% चेंज हुआ इन्फ्लेशन में, दैट मीन्स मिजरी इंडेक्स में चेंज हुआ 1% का। बट अकॉर्डिंग टू सम थ्योरिस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। देख सकते हो अगर थोड़ा सा भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इकोनॉमी में, कितना ज्यादा क्राइम बढ़ जाता है, बट इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इकोनॉमी में। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी, फॉर एन इकोनॉमीज ग्रोथ एज वेल एज इट्स फ्यूचर। बट ये वो मेजर नहीं करता, इट अज्यूम्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट दोनों बराबर हैं, दोनों में जितना भी चेंज होगा वो बराबर इंपैक्ट आएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ को तो ये कंसिडर ही नहीं करता। हो सकता है एक इकोनॉमी है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है फॉर सम रीजन, सम रैंडम रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी हाई, देन इन दैट केस प्रॉब्ली मिजरी इज नॉट सो हाई इन द इकोनॉमी, इट हैज क्रिएटेड इट्स ओन पाथ इन ऑर्डर टू ग्रो फास्ट, है ना। तो इंप्रूवमेंट्स किए गए कुछ, जैसे स्टीव हैंके ने इंप्रूवमेंट किया आई थिंक 2006 और समवेयर अराउंड दैट,
He said, let's add some more components. Unemployment तो है ही, inflation भी है, बैंक lending rates और include कर देते हैं. मतलब if the lending rates are increasing in the economy, that means economy is not going to be in a good position, because जैसे ही बैंक में lending rates बढ़ने लगते हैं, people start borrowing less. When people start borrowing less, they start investing less. When they start investing less, economic growth will go down in the economy, because investment नहीं हो रहा है economy में. तो बैंक lending rate अगर बढ़ रहा है तो मिजरी बढ़ रही है, इसलिए उसको प्लस किया है. माइनस चेंज इन रियल जीडीपी पर कैपिटा. इफ रियल जीडीपी पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मिजरी इज गोइंग डाउन. ये इनवर्स रिलेशनशिप है. इफ जीडीपी पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग, आई रिपीट, देन मिजरी इज गोइंग डाउन, इसलिए उसको माइनस किया है, प्लस नहीं किया है. तो अगर चेंज इन रियल जीडीपी पर कैपिटा इज पॉजिटिव, देन इट इज रिड्यूसिंग मिजरी इन द इकोनॉमी, इसलिए इसको माइनस करके हमने मिजरी को कम कर दिया. आई होप दिस क्लियर. दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टीव हैंके एंड आर्थर ओकुन, दोनों के आपको जो फॉर्मूलेज है वो भी पता होने चाहिए. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है. द आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. क्वेश्चन क्या है? कंसिडरिंग दिस, व्हिच आर द फॉलोइंग मेजर्स बाय आरबीआई वुड नॉट हेल्प इन टैकलिंग इन्फ्लेशन. किससे हम इन्फ्लेशन टैकल नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे हाउ कैन वी टैकल इन्फ्लेशन. हाउ कैन वी टैकल इन्फ्लेशन? बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, व्हाट डज आरबीआई डू? आरबीआई इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिसी रेट्स इन द इकोनॉमी. तो पॉलिसी रेट्स इंक्रीज करता है. क्यों करता है? जिससे कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो सके. जैसे ही मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, पीपल विल हैव लेस मनी इन देयर हैंड्स, इन्फ्लेशन विल स्टार्ट गोइंग डाउन. बिकॉज इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज डिमांड ऑफ मनी is more than supply of money. There's too much money in the economy. Supply of money is more than demand of money. When there's too much money in the economy, automatically inflation होने लगता है. ठीक है ना? या फिर demand of goods is more than supply of goods. दोनों चीजें हम बोल सकते हैं. तो यहां पर क्या होगा? Which of the following will not help in tackling inflation? तो जहां पर भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, that will not help in tackling inflation. जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई. सो दिस बिकम्स आवर आंसर. बट ऑप्शन नंबर ए बी सी देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन ए बोलता है इंक्रीजिंग सीआरआर. अगर हम सीआर इंक्रीज करेंगे, सीआरआर विच इज नॉट अ पॉलिसी रेट बट जस्ट अनदर रेट जस्ट लाइक द पॉलिसी रेट, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगा, है ना, क्योंकि आरबीआई के पास ज्यादा रिजर्व रहेगा. Selling government securities. When the RBI sells government securities, then people give their money. Banks give their money to RBI and it stays with RBI. तो आपने क्या किया? इकोनॉमी में से मनी सप्लाई कम कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होने लगेगा. डिस्करेजिंग बैंक्स फ्रॉम एक्सटेंडिंग लोन्स अगेंस्ट एसेंशियल कमोडिटीज. जब आप कम लोन्स देने लगोगे, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में. सो ऑल द ABC, ऑल द 3 ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. जब मनी सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन कम होने लगेगा इकोनॉमी में. बट फोर्थ वाला ऑप्शन बोलता है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको आरबीआई की फंक्शनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो आप ये आंसर ढंग से नहीं कर पाओगे. ओके, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस. आज के हमने 5 कवर किए. पहले ऑलरेडी मैं 5 कवर कर चुका हूं. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, देन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. उसका प्लेलिस्ट भी अलग बना हुआ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन्फ्लेशन. दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इन्फ्लेशन. और मैं एक वीडियो में कम क्वेश्चंस भी कवर इसलिए कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विल सी यू वंस अगेन विद सम अदर वीडियोस रिलेटेड टू chapters one by one. I'm trying to cover the entire economy through questions. I will also try and cover the entire economy by teaching you entire economy chapter by chapter, one by one in the future as well. कोई question है, कोई doubt है, if you want to ask me something, if you want to tell me something, put it down in the comment section below so that I can read it and I know what problems students are facing, and then I can probably help you by giving you the solution as well. I'll see you once again. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.